تلنگانہ MCET کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ 86% طلبہ ایگریکلچر اور 80% طلبہ انجینئرنگ میں کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ماساب ٹینک میں ہائر ایجوکیشن کونسل کے دفتر میں عہدیداروں کے ساتھ نتائج جاری کیے۔ MCET ایگریکلچر کے شعبے میں 84% لڑکے اور 87% لڑکیاں کامیاب قرار دی گئی ہیں۔ انجینئرنگ اسٹریم میں 79% لڑکے اور 82% لڑکیاں کامیاب قرار دی گئی ہیں۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ داخلے کے عمل سے متعلق نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ امریکہ میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کا دورہ کامیابی سے جاری ہے۔ اہم بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ وزیر KTR کی مساعی سے ریاست میں اپنے یونٹس قائم کرنے اور سرمایہ کاری کرنے کے سلسلے میں کئی کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کے پرچوں کے افشاء کے معاملے میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے مزید 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان میں ایک جونیئر اسسٹنٹ روی کشور، کار ڈرائیور وکرم اور دیویا نامی خاتون شامل ہیں۔ انہوں نے درمیانی افراد کی مدد سے پرچہ خریدا تھا۔ اس معاملے میں تاحال گرفتار ہونے والوں کی تعداد 39 تک جا پہنچی ہے۔ ناگر کرنول ضلع میں BJP اور BRS کے کارکنوں میں تصادم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مندر کی افتتاحی تقریب میں شریک رکن اسمبلی جی بال راج کو BJP کارکنوں نے روک دیا اور کہا کہ وہ سیاسی بات کر رہے ہیں۔ اس پر BRS کارکنوں نے مداخلت کی اور دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں بحث و تکرار ہو گئی، جس نے تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنریٹ کے حدود میں 40 نئے پولیس اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں۔ کئی برسوں بعد کمشنریٹ کی تنظیم جدید کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے نئے زونز، ڈویژنز اور پولیس اسٹیشنز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میگا سٹی پولیس پروجیکٹ کے حصے کے طور پر نئے پولیس اسٹیشنز 2 جون سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس مقصد کے لیے 33 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ جنگاؤں ضلع کے ورلا کنڈا میں کسانوں نے سڑک پر دھرنا دیا۔ غیر موسمی بارش سے فصلوں کو ہوئے نقصانات پر تاحال معاوضے کی رقم نہ ملنے پر ان کسانوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے معاوضے کی ادائیگی کا تیقن دیا تھا، تاہم ابھی تک یہ رقم انہیں نہیں ملی۔ انہوں نے 40,000 روپے معاوضے کا مطالبہ کیا اور اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ اہلیت رکھنے والے افراد کو وظائف نہ ملنے سے ان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ضعیف افراد، معذورین، بیواؤں اور تنہا زندگی گزارنے والی خواتین، 57 برس کی عمر مکمل کرنے والے BD کے ورکرز اور گیتا ورکرز جملہ 1,80,000 افراد کو وظیفہ نہ ملنے کی اطلاع ملی ہے۔ آسرا وظائف کی منظوری کے لیے 2021 میں درخواستیں طلب کی گئی تھی، تاہم بعد ازاں اہلیت رکھنے والوں کو نظر انداز کرنے کی اطلاع ملی ہے۔ شہر میں دوسرے دن بھی سرکردہ ریئل اسٹیٹ کمپنی کوہ نور انفرا پر IT کے دھاوے جاری ہیں۔ کل ان دھاووں کا آغاز ہوا تھا، جس کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری ہے۔ عطاپور میں کوہ نور انفرا کارپوریٹ آفس میں IT کی 3 ٹیمیں تلاشی لے رہی ہیں۔ کمپنی کی مالی معاملات کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اکاؤنٹنٹس کو طلب کرتے ہوئے لاگ بکس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بعض کمپیوٹرز اور ہارڈ ڈسک کے ساتھ ساتھ دستاویزات کو بھی ضبط کیا گیا۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ کے پرنس باڈی گارڈ لین اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے آج ابتدائی مجالس کے ذمہ داروں کے ساتھ علاقے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پرنس باڈی گارڈ لائن میں CC روڈ کے کاموں کا افتتاح کیا اور مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا۔
انہوں نے اس دورے کے دوران عوام سے ملاقات کی اور عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر احمد بلالہ کے ساتھ GHMC، واٹر ورکس، محکمہ برقی، سینیٹیشن، پولیس اور دیگر محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ٹپا چبوترا کے مختلف علاقوں میں کل شب اچانک عجیب و غریب بو سے مقامی افراد میں تشویش پھیل گئی، جو بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل پڑے۔ مقامی افراد نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ زہریلی گیس یا پھر کیمیکل کی بو ہو سکتی ہے۔ کئی افراد نے اس واقعے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ کئی افراد کو اپنے رشتہ داروں کی خیریت معلوم کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض افراد اس سے متاثر بھی ہوئے۔ ٹپا چبوترا کی 5 کالونیوں میں اس طرح کی صورتحال دیکھی گئی۔ ٹپا چبوترا، کلثوم پورہ، کمیلا روڈ، یوسف نگر، کاروان، نٹراج نگر اور مہیش کالونی کے مکینوں نے رات خوف کے عالم میں گزاری۔ شہریوں نے کہا کہ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ عجیب و غریب قسم کی بو کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچے اور ضعیف افراد کو اس بو سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ بعض افراد کو اس بو سے الٹیاں بھی ہونے لگی۔ مقامی افراد نے کہا کہ تقریباً 3 بجے شب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کی اچانک صورتحال کا ان کو قبل ازیں کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مقامی افراد نے چوکسی کا مظاہرہ کیا اور اس بات کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد ACP اور پولیس کے دیگر عہدیداروں نے مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ بو زہریلے دھوئیں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مقامی افراد کی شکایت پر DRF کی ٹیمیں اور پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ کرناٹک میں اپوزیشن نے پولیس فورس کو زعفرانے سے متعلق ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار کے ریمارکس کو نامناسب قرار دیا۔ BJP کے دور میں پیش آئے بعض واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے شیو کمار نے سینئر پولیس عہدیداروں سے ایک اجلاس کے دوران پوچھا تھا کہ کیا آپ پولیس کو زعفرانے کا کام کریں گے؟ منگلورو، وجے پورہ اور باگلکوٹ میں BJP دور حکومت میں ملازمین پولیس کے زعفرانی شال اوڑھنے کے واقعات کا انہوں نے اس اجلاس کے دوران حوالہ دیا تھا۔ حیات نگر میں کسلار میں کار کی زد میں آنے کے نتیجے میں معصوم لڑکے کی موت ہو گئی۔ اس کو دواخانہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ ایک ماں جو لیکچرر کالونی میں مزدوری کے لیے آئی تھی نے اپنے 3 سالہ بچے کو اپارٹمنٹ کے سیلار میں سلا دیا۔ اسی دوران ایک کار کے ڈرائیور نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ لڑکا کار کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے افضل نگر کمیونٹی ہال قدیم ملک پیٹ میں سالار ملت سیونگ مشینوں کی تقسیم کی۔ ان 34 مفت مشینوں کی تقسیم خواتین میں کی گئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کے ساتھ سید منہاج الدین، کارپوریٹر اکبر باغ ڈویژن کے علاوہ خاتون کارکن ناظمہ میڈم اور استفادہ کنندگان کے ساتھ ساتھ ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ ایک اہم کامیابی کے طور پر ملک پیٹ پولیس نے اندرون ایک ہفتہ موسیٰ ندی کے پاس تن سے جدا سر کے سنسنی خیز معمے کو حل کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ملزم نے مقتول خاتون کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے انہیں فریج اور سوٹ کیس میں رکھ دیا تھا اور بو نہ آئے اس لیے پرفیوم وغیرہ اس پر چھڑک رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق 48 سالہ آن لائن سٹاک مارکیٹ کا کام کرنے والا چندر موہن ساکن چیتنیا پوری غیر شادی شدہ بتایا گیا ہے۔ اس کے ناجائز تعلقات 55 سالہ خاتون انورادھا ریڈی ساکن دلسکھ نگر سے 15 سال قبل قائم ہوئے تھے، جس سے اس کے شوہر نے علیحدگی اختیار کی تھی۔ یہ خاتون ضرورت مند افراد کو سود پر قرض دیا کرتی تھی۔ 2018 میں چندر موہن نے تقریباً 7 لاکھ روپے خاتون سے حاصل کیے تھے اور اس نے رقم ادا نہیں کی۔ رقم کی واپسی کے مطالبے پر اس نے خاتون کے قتل کا منصوبہ بنایا اور 12 مئی کی دوپہر اس نے قتل کر دیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کی تشکیل کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی جانے والی تقریبات کے خصوص میں
तमाम अजला के कलेक्टर्स के हमरा तबादला ख्याल किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में जिला कलेक्टर्स के हमरा वज़ीर आला KCR की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद किया गया। 2 जून को तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मिल होने जा रहे हैं। हुकूमत ने रियासत भर में 21 रोज तक जश्न मनाने का फैसला किया है। इस इजलास में KCR ने कलेक्टर्स को शहदा की कुर्बानियों को याद रखते हुए तकरीबात का इनेकाद करने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने कलेक्टर्स को 21 रोज तक मुनक़िद करने वाली सरगर्मियों से भी वाकिफ करवाया। BRS सरबराह ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इन तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों और वज़रा के साथ तालमेल करें। तकरीबात को मुनक़िद करने के लिए रियासती हुकूमत कलेक्टरों को 105 करोड़ रुपये जारी करेगी। हैदराबाद के मशीराबाद इलाके के एक पेट्रोल पंप इंतजामिया ने 2000 रुपये की नोट लाने वाले ग्राहकों से कहा है कि वो कम से कम 500 रुपये का पेट्रोल खरीदें। मरकजी हुकूमत ने 2000 रुपये की नोट का चलन बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद लोग नोटों को तब्दील करवाने के लिए बैंकों के साथ साथ पेट्रोल पंप्स का रुख कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों में ग्राहक 100 रुपये का पेट्रोल डलवा कर 2000 रुपये की नोट अदा करते देखे गए हैं, जिससे पेट्रोल पंप इंतजामिया को बकाया रकम वापस करने में मुश्किलात पेश आई हैं। हैदराबाद शहर के पेट्रोल पंप पर भी यही सूरत हाल देखी गई। ऐसे में मशीराबाद के पेट्रोल पंप पर इंतजामिया की जानिब से एक नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 2000 रुपये की नोट लाने वाले ग्राहकों को कम से कम 500 रुपये का पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर चस्पा किया गया नोटिस सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। सोशल मीडिया पर भी तस्वीर वायरल हो रही है। अवाम मिले जुले तबसरे कर रहे हैं। इम्कान है कि चिल्लर की किल्लत की वजह से पेट्रोल पंप इंतजामिया ने ये फैसला लिया होगा। आपको याद दिला दें कि 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक काबिले इस्तेमाल रहेंगे। 30 सितंबर तक उन्हें तब्दील करवाने या बैंक में जमा करवाने की मोहलत दी गई है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किंग कोटी और नामपल्ली के सरकारी अस्पतालों का दौरा करते हुए हुजाज की टीका अंदाजी के अमल का मुआयना किया है। सफर मुक़द्दस पर रवाना होने वाले आज़मीन की तिबी जांच और उनकी टीका अंदाजी के लिए इस साल हज हाउस के बजाय शहर के सरकारी अस्पतालों में कैंप लगाए गए हैं, लेकिन नाक़स इंतजामात की वजह से टीका अंदाजी और तिबी जांच का अमल बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। टीका अंदाजी कैंप के आगाज़ के बाद से ही मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में आज़मीन को मुश्किलात पेश आई। हुजाज की जानिब से शिकायतें मौसूल होने पर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर सूफी खैरुद्दीन खादरी पर मुश्तमिल वक्त ने गुज़िश्ता रोज़ सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया। सूफी खैरुद्दीन खादरी ने हज कमेटी और महकमे सेहत की लापरवाही पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इंतबाह दिया था कि अगर हुजाज को सहूलियात मुहैया न करवाई गई तो वो रियासती हज कमेटी की सेंट्रल हज कमेटी से शिकायत कर देंगे। सूफी खैरुद्दीन खादरी की जानिब से इंतबाह जारी करने के दूसरे ही दिन हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के अराकीन और महकमे सेहत के अहलकार हरकत में आ गए और आज किंग कोटी और नामपल्ली के सरकारी अस्पतालों का दौरा करते हुए वहां जारी टीका अंदाजी के अमल का मुआयना किया। चेयरमैन हज कमेटी ने इस मौके पर हुजाज से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उन्हें हल करने की मुताल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। हैदराबाद के लोग न सिर्फ बढ़ते हुए दर्जे हरारत बल्कि सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से भी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिद्दत की गर्मी तो दूसरी जानिब महंगी तरकारियां आम इंसान को परेशान कर रही हैं। फलियां 100 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही हैं। टमाटर, आलू, हरी मिर्च, गाजर, भिंडी, लीमू के दाम भी बढ़ गए हैं। तरकारी के साथ मुफ्त में लिया जाने वाला हरा मसाला जैसे पुदीना और कोतमीर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान पुदीना और हरा धनिया यानी कोतमीर के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मादनापेट की सब्जी मंडी के ताजरीन का कहना है कि बेवक्त की बारिश, दर्जे हरारत में इजाफा, सब्जियों की किल्लत और शादियों के सीजन की वजह से तरकारियां महंगी हो गई हैं। रियासत के कई हिस्सों में बारिश और जालाबारी के बाद कच्चे आम की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाटो नामी कच्चा आम दस्ता 12 रुपये दस्तियाब है, जबकि गुज़िश्ता साल ये 5 रुपये में फरोख्त किया गया था। शिद्दत की गर्मी के चलते लीमू की मांग और लीमू के दाम दोनों बढ़ गए हैं। जो लीमू
3 रुपये में फरोख्त किए जा रहे थे, अब 5 रुपये में दस्तयाब हैं। हरी मिर्च और आलू 35 ता 40 रुपये फी किलो, टमाटर 15 ता 20 रुपये फी किलो है। जबकि तरकारियों की बढ़ती हुई कीमतों से किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन आवाम की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। गोशामहल डिवीजन कॉर्पोरेटर श्रीलाल सिंह के हाथों धूलपेट इलाके में कंटी वेल्गू के दूसरे कैंप का आगाज किया गया। नवा युवक दल वाक़े धूलपेट पर कंटी वेल्गू का दूसरा कैंप लगाया गया। कॉर्पोरेटर श्रीलाल सिंह ने आंखों के मुआयने के दूसरे कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर सुनिंदा, SPHO डॉक्टर फारूक, डॉक्टर जी उमा भार्गव, रमेश सिंह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कंटी वेल्गू का पहला कैंप भरत कम्युनिटी हॉल में मुनाकिद किया जा रहा है और आवाम की कसी तादाद इससे इस्तिफादा हासिल करते हुए अपनी आंखों के मुआयने करवा रही है। सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा है कि KCR हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है। तेलंगाना के किसानों से कम इमदादी कीमत पर अनाज की मुसलसल खरीदारी इसका सबूत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का एक इजलास वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की सदारत में मुनक्किद किया गया। अनाज की खरीदारी और दीगर मसाइल पर इजलास में गौर किया गया है। गंगुला कमलाकर ने इस मौके पर राइस मिलर्स के जिम्मेदारान से हुकूमत के साथ ताउन करने को कहा। मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने उन्हें दरपेश मसाइल से वजीर को वाकिफ करवाया। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर अनिल कुमार, GM श्रीनिवास, राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदर G नागेंद्र, जनरल सेक्रेटरी A सुधाकर, कारगुजार सदर P प्रभाकर राव के अलावा दीगर ने भी इस इजलास में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मादनापेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए मुजव्विज़ा मुकाम का मुआयना किया। सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सईदाबाद डिवीजन के D क्वार्टर्स में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए तजवीज़ करदा मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू की है और तफसीलात हासिल की है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सैयद मिनहाज, महकमा बल्दी, बरखी और आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। गोशामहल के BJP लीडर राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान के कोटा में राजा सिंह ने फिर एक बार इश्तियाल अंगेजी की है। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर मुनक्किद शौर्य वाहन रैली और एक स्वाभिमान सभा इजलास के दौरान राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को 2025 तक हिंदू राष्ट्र करार दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस ने तकरीर के दौरान मजहबी हम आहंगी मुतासिर करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल करने पर राजा सिंह पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको याद दिला दें कि PD एक्ट के तहत जेल में महरूस रह चुके राजा सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट ने मशरूत जमानत दी थी और जल्द से जुलूस से खिताब करने से मना किया था, लेकिन BJP लीडर की जानिब से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क की अलग अलग रियासतों में एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ जहर अफशानी करने का सिलसिला जारी है। ऐसी रियासतें जहां BJP इख्तिदार में नहीं है, वहां की हुकूमतें भी इश्तियाल अंगेज बयानात देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। नतीजतन वहां फसादात बर्पा हो रहे हैं। मगरबी बंगाल, बिहार, राजस्थान, झारखंड के बाद अब मणिपुर में भी फसादात फूट पड़े हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासती हुकूमतों को नफरत फैलाने वालों के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। नफरत के सौदागर मुल्क के कोने कोने में नफरत फैला रहे हैं और हुकूमतें हैं कि महज खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। फिरका परस्त तंजीमों पर पाबंदी लगाने का वादा करके कर्नाटक में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है। कांग्रेस हाई कमान को चाहिए कि वो कांग्रेस की इख्तिदार वाली रियासतों में भी हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ शिकंजा कसे और अवाम को राहत पहुंचाए। जिले करीमनगर के हुजूराबाद में एक दुल्हन को अगवा करने और दूल्हे के साथ मारपीट करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कोंदा गट्टू में शादी करने के बाद वापस लौट रहे नौब्याहता
जोड़े की गाड़ी को 15 अफराद ने रोक दिया और दूल्हे को जदुकोब करने के बाद दुल्हन को अगवा करके फरार हो गए। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि दुल्हा और दुल्हन दोनों जिले हनमकुंडा के रहने वाले हैं। लड़की के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, ताहम दोनों ने जिले करीमनगर आकर शादी रचा ली। शुबा है कि दुल्हन के रिश्तेदारों ने ही उसे अगवा किया होगा। जमीयत उलमा जिले करीमनगर के जिम्मेदारान के एक वफ्द ने रिकुर्ती में मुनहदम कर दिए गए मुसलमानों के मकानात का जायजा लिया है। रिकुर्ती में मुसलमानों और दिगर की जानिब से सर्वे नंबर 194 में तामीर किए गए मकानात पर बुलडोजर चला दिया गया है। मकानात टूट जाने से कई लोग बेघर हो गए हैं। मुतासिरा लोगों का कहना है कि वो अराजियात उन्हें तोहफे में दी गई थी। सदर जमीयत उलमा जिला करीमनगर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस अल खासमी ने मुतासिरा अफराद से मुलाकात की है और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल करने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ाई है। इस मौके पर उनके हमरा मुफ्ती मोहम्मद क़यासुद्दीन रशादी, मुफ्ती मोहम्मद सादिक खासमी, हाफिज अब्दुल मजीद इश्तियाक के अलावा मौलाना मुज़म्मिल असदी भी मौजूद थे। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट किस मुकाम पर मुनक़िद करना है, इस सिलसिले में अब तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। 28 मई को इस सिलसिले में वजाहत पेश किए जाने का इम्कान है। एशिया कप 2023 को पहले तो पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में मुनक़िद करने का फैसला किया गया था, ताहम बीसीसीआई ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के पाकिस्तान का दौरा करने और वहां क्रिकेट खेलने की मुखालिफत करते हुए मुतबादिल मकामात पर इस मुकाबले को मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की। हिंदुस्तान की जानिब से पेश की गई राय से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो इत्तेफाक नहीं किया था, लेकिन बाद में हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश की। हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक हिंदुस्तान जितने भी मैचेस खेलेगा वो मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे और माबाकी मैचेस पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पर एतराज़ जताते हुए कहा है कि सितंबर के महीने में मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसम मुनासिब नहीं होगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तालमेल का फुकदान होने से टूर्नामेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान लग रहा है। बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह ने टूर्नामेंट के इनेकाद और उसके मुकाम को लेकर जारी कशमकश के बाद ट्वीट किया है कि इस ज़िमन में 28 मई को वजाहत की जाएगी। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदूर जो IPL का फाइनल मैच देखने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं, इस मामले पर बात करेंगे। जय शाह के मुताबिक एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। एमसेट इम्तिहान में रैंक हासिल न होने पर मायूसी का शिकार एक तालिब इल्म ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की है। JNTU की जानिब से एमसेट 2023 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस साल लड़कियों के मुकाबले लड़कों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, ताहम कुछ तलबा इस दौड़ में पीछे रह गए हैं और तवक्को के मुताबिक रैंक न मिलने पर उनमें मायूसी पाई जा रही है। एमसेट में तवक्को के मुताबिक रैंक हासिल न होने पर नल्लाकुंटा के रहने वाले चेतनिया नामी एक तालिब इल्म ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में टैगोर ऑडिटोरियम के करीब एक वीरान इलाके में पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा ली। मुकामी लोगों ने फौरी इसकी इतला पुलिस को दी है और आग बुझाई है। इस वाक़े में चेतनिया शदीद जख्मी हुआ है, उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर,
फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।